حتیٰ کہ آپ کی جان اگر چلے جائے گی لیکن جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ جیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ تم ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے، تم تقوی اختیار کرو۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہر چیز کو ایک حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ تقوی آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا آپ صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے۔ آپ کو تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اس کا خوف آپ کو عطا ہو جائے گا۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، بزرگوں میں جو سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ جب یہ اپنے جیلان علاقے سے بغداد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک نصیحت کی۔ وہ نصیحت یہ کی کہ آپ علم پڑھنے جا رہے ہیں، علم دین پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن میری ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی جان اگر چلے جائے گی لیکن جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ جیلان سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ والدہ نے انہیں جو توشہ سفر دیا، سفر کے لیے جو راستے کے لیے جو انہیں خرچہ جات دیے، وہ 40 دینار تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ 40 دینار ان کی والدہ نے ان کے بغل کے کپڑے میں، یعنی کوٹ پہنا ہوا تھا، کون سا کپڑا تھا، اس کے اندر اس کو سی کر کے رکھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ اس سفر پر رواں ہوئے ایک قافلے کے ساتھ، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک انسان تنہا سفر نہیں کرتا تھا، وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ڈاکو ہوا کرتے تھے، چور ہوا کرتے تھے، جو مسافروں کا مال لوٹا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، انہوں نے قافلے کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ تنہا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کافی دور، تھوڑی دوری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب تمام قافلے کو لوٹنے کے بعد یہ تمام ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے، جو مال وغیرہ جمع کیا تھا تقسیم کرنے لگے۔ کافی عرصے کے بعد
फिर उन डाकू में से एक डाकू मेरे पास आया और मुझे कहा, क्या आपके पास कुछ है? कहा, मुझे अपनी वालिदा की यही वसीयत और नसीहत थी कि झूठ कभी नहीं बोलना। कहा, मैंने इन्हें कहा कि मेरे पास 40 दीनार हैं और ये भी कहा कि ये मेरे बगल में मेरे कपड़े के अंदर सिए हुए हैं। कहा, उसने मेरी बात को मजाक समझा और हंस के वापस चले गया और अपने आका से कहा कुछ अरसे, कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्फे के बाद एक दूसरा शख्स मेरे पास आया उन्हीं डाकुओं में से, और उसने भी मुझसे यही कहा, क्या आपके पास कुछ माल है? मैंने उससे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार हैं जो मेरे बगल में मेरे कपड़े के अंदर सिए हुए हैं। कहा, इसने ये बात अपने सरदार से कही और सरदार ने कुछ अफराद को मेरे पास भेजा और मुझे पकड़ करके लिया। जब मुझे पकड़ के लिया और मुझसे कहा, क्या आपके पास कुछ माल है? मैंने फिर वही जवाब दिया। उनके सरदार ने उनसे कहा कि इसकी तलाशी ले लो। जब तलाशी ली तो मेरे बगल से वही 40 दीनार निकले जो मेरी वालिदा ने मुझे दिए थे। कहा कि इस शख्स ने, यानी इस सरदार ने मुझसे कहा कि आपको मालूम है कि हम चोर हैं, आपको मालूम है हम लोगों का माल लूटते हैं। कहा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। कहा, जब मालूम होने के बावजूद आपने हमसे इसका एड्रेस क्यों दिया? कहा, इसलिए दिया कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि आप इल्म दीन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी जुबान से कभी भी झूठ नहीं निकलना चाहिए। मेरी वालिदा ने मुझे कहा है, आपकी जान चले जाए इसकी कोई परवाह नहीं, आपका माल चले जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना। लिहाजा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने आपसे सच ही कहा। डाकू ने कहा, आपने अपनी बताई हुई मां की इस वसीयत पर इतना अमल किया और आपने जो माल आपको जरूरियात जिंदगी के लिए था आपने ये नहीं छुपाया और हमें इसका पता दिया। हम कितने नालायक और नादान हैं कि जिस रब्बे करीम ने हमको पैदा किया है, जिस रब्बे करीम ने हमको जिंदगी दी है, जिस रब्बे करीम ने हमको इस बात की नसीहत भी की है कि आप झूठ नहीं बोलना, आप हराम नहीं खाना, आप गलत नहीं करना, किसी पर जुल्म नहीं करना, इसके बावजूद हम उस रब की, यानी हम उस अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम आज के बाद तौबा करते हैं कि आपने हमको हिदायत का एक रास्ता दिखाया, हमें हिदायत की तरफ रहनुमाई की। हम इस बात से तौबा करते हैं कि हम आज के बाद इस गलत काम को नहीं करेंगे, हम कामिल और पक्के ईमान वाले और मुसलमान बन जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात से, सच बोलने की वजह से डाकू के सरदार ने कलमा पढ़ लिया, ईमान के अंदर दाखिल हुआ, गलत काम से तौबा कर लिया। और जब उनके बाकी उन अफरादों ने ये रवैया देख लिया, उन सबों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और ईमान के अंदर दाखिल हो गए और आमाले सालिहा करने के लिए तैयार हो गए और इस बुरे काम से तौबा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया है, हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, रिवायत बुखारी के अंदर है, फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सच एक ऐसी चीज है जो इंसान को हिदायत की तरफ लेती है, यानी हिदायत नेकी की तरफ लेती है, और नेकी एक ऐसी चीज है जो इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सच बोला तो उन तमाम डाकुओं को तौबा नसीब हो गई, बुरे काम से रुके और नेकी की तरफ वो चल बसे। और आगे फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, झूठ एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुनाह की तरफ लेता है, और जब इंसान गुनाह की तरफ चले गया तो जब गुनाह की तरफ चले गया और गुनाह इंसान को जहन्नम तक पहुंचाते हैं।
इस वाक़ये से और इस रिवायत से और अल्लाह तबारक व तआला की उस आयत से कि ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं अल्लाह से डरो। जब एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह का डर होगा, तकवा होगा, और ये तकवा हमें कैसे नसीब होगा? कुनु मअस-सादिकीन। और जब हम नेक लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ रखेंगे, हमें अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और तकवा हासिल हो जाएगा। लिहाजा हम भी कोशिश करें, हम भी ये अहद करें। हम सब इस बात का नारा देते हैं कि हमारे पीर हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। वो पीरों के पीर हैं, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं, वलियों के वली हैं, बहुत बड़े वली हैं। हमें उनकी नसीहत को, उनकी उस किए हुए काम पर हमें भी अमल करना चाहिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात पर हमें भी अमल करना चाहिए। जब हम अमल करेंगे तो हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।